मैंने व्रत रखा, कई कई दिन लगातार फास्टिंग की, फूड को लगभग बिल्कुल त्याग ही दिया। कई दिनों के लिए भोजन नहीं लिया और इन्हीं कुछ दिनों में ही मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं बहुत वीक फील करने लगी, टायर्ड हो जाती, बहुत जल्दी थकने लग गई और कोई काम नहीं हो सकता था मुझसे। स्टैमिना बिल्कुल डाउन आ गया। क्यों? वाई? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, ऊर्जा, carbohydrates, fats, proteins of the food, the main components of the food, balanced diet, provide us lot of energy. Proteins help us in building our body building, building of the tissues, cells is done by the proteins. Vitamins and minerals needed in less amounts, small quantities per day, but very essential for growth. Water helps in preventing dehydration and performs so many metabolic activities, helps in the metabolism. So taking these various components of food in the right ratio, right amount, comprises the balanced diet. These are complex food molecules and they have to be converted into simple form, digestible form, absorbable forms so that the body can utilize them to get energy out of them. So this is what is precisely done by our digestive system, पाचक तंत्र. यह फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में लाता है with the help of mechanical and biochemical methods. The food is broken down by the digestive system and we get energy in the end. So the digestive system comprises of two things, that is the alimentary canal here I've shown an open alimentary canal. How so? Why is it open? Because it has two openings, that is the mouth and the anus. Thus it is open alimentary canal, which I have shown here. And the digestive system of man also comprises of certain glands associated with the alimentary canal, digestive glands, the liver, the pancreas, etc. मम्मी, मेरा दांत टूट गया. Don't worry बेटा, अभी तो और भी दांत टूटेंगे और इसके बदले में तुम्हें मिलेंगे बहुत बढ़िया परमानेंट पक्के टीथ. जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे दांत होंगे. इनकी जगह पर जो टूटे हैं नए दांत उग जाएंगे. Don't you worry. Most of the mammals, including human beings, get two sets of teeth in their life cycle. The first set being temporary or milky teeth, the milk teeth or deciduous teeth, झड़ जाने वाले, टूट जाने वाले दांत, which are replaced by a set of permanent, strong adult teeth. This type of dentition is called diphyodont. Diphyodont. Our mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. अंदर एक गुफा सी है जिसको बकल कैविटी बोलते हैं माउथ के अंदर, जिसमें कौन मौजूद है? द टंग,
muscular tongue, jivha, jeeb, and the teeth are found in the buccal cavity, and the teeth are embedded in a socket of the jawbone. हमारा जबड़ा, उसकी हड्डी, जॉ बोन में धसे होते हैं हमारे दांत. तो ये अगर जॉ बोन है तो इसके अंदर इस कैविटी में, इस गड्ढे में धसा हुआ है हमारा दांत, घुसा हुआ है हमारा टूथ. Such kind of an arrangement, attachment is called thecodont arrangement of the teeth. An adult human being has 32 permanent teeth, which are of 4 different types, namely incisors, canines, premolars, and molars. I, C, PM, and M. Look at these teeth. These are the incisors in the front. One side I have shown below the lower teeth. These are the incisors in the front, 2 in number. इनके बाद ये पॉइंटेड दांत देख रहे हैं आप, ये आ जाते हैं कैनाइन्स. तो यहाँ पे एक कैनाइन है. अगर हम इस हाफ को देखें, खाली इस हाफ को देख रहे हैं हम, यहाँ वाले दांत देख रहे हैं, तो इंसीजर्स पड़े हैं 2, कैनाइन पड़ा है 1, नकीला दांत जो कि टाइगर्स वगैरह में बहुत शार्प होता है टीयर करने के लिए फ्लैश को. और ये प्रीमोलर्स कितने पड़े हैं, 1 and 2, प्रीमोलर्स 2 and molars 3, 1 2 3 lying in a row. तो गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड में 8 हैं और यहाँ पे भी इसका मतलब 8 है, 8 दूनी 16. ठीक है, 16 नीचे वाले दांत और 16 ही ऊपर वाले दांत, टोटल हो गए 16 + 16 32. So the arrangement of incisors, canines, premolars and molars in the upper half of the jaw and lower half jaw, that comprises the dental formula of man. And what is that? 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3 comprises the dental formula of man. What does this 2 1 2 3, what do they indicate? They indicate our permanent teeth, whereas 2102 upon 2102 comprises the milky teeth dental formula of the children. So what is lacking in the children? देखें, ये वाला तो दोनों सेम है और ये क्या होता है, आगे वाला इंसीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2, ये इंसीजर्स हैं. तो हमारे 2 आगे के, एक साइड के अगर देखो, खाली एक साइड के दांत देखो नीचे वाले जॉ के, ये है लोअर जॉ, ये है अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा. इनका आधे वाले दांतों को लेना है ना, तो हमने केवल ये वाले सेट, ये वाले साइड के दांत के देखना है, हाफ दांत देखने हैं अपर जॉ के, मान लो. तो ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ के दांत हैं. अपर जॉ को देखते हैं पहले. 2, ये 2 क्या है, आगे आगे वाले दांत, ये वाले इंसीजर्स.
तो ये 2 इंसीजर पड़े हैं, हाँ यहाँ भी पड़े हैं 2, छोटे बच्चों में भी 2 पड़े हैं और हमारे में भी एडल्ट में 2 हैं। ओके, उसके बाद अगर मिल्की टीथ देखें तो ये 1 है, ये नेक्स्ट वाला, ये क्या होता है? इंसीजर्स के बाद क्या आते हैं? कैनाइन्स, तो 1 कैनाइन है। ऐसे ह्यूमंस एडल्ट्स में 1 कैनाइन है। चिल्ड्रन में एक भी प्रीमोलार नहीं है। ह्यूमन बींग्स में 2-2 प्रीमोलर्स हैं, आ चुके हैं एडल्ट टीथ। और यहाँ हम मिल्की टीथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो ये 2 क्या हुए? मोलार्स। तो द चिल्ड्रन हैव 2 मोलार्स ओनली which are shut down, thrown down, and they are replaced by, finally, 3 molars will be produced as permanent teeth in adults. So that is how 2, 1, 2, 3 represents the upper jaw half teeth. Upon this, upon 2, 1, 2, 3 again, that is the lower half teeth found in the lower jaw, the half teeth, 2, 1, 2, 3. And 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3 comprises the dental formula of man. Dental formula of man. हाफ ले लो अपर जॉ को, ये है अपर जॉ, इंसीजर ये है पड़ा हुआ, एक और इंसीजर, तो 2 इंसीजर हो गए, लिख देते हैं। 1 कैनाइन, लाइन से लिखना है तो 1 कैनाइन, ये 2 प्री मोलार्स आ गए, पीएम, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। और ये 3 क्या पड़े हैं? मोलार्स, तो यहाँ 3 लिख देते हैं मोलार्स। ये तो ऊपर की जॉ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नीचे की जॉ को देखते हैं, उसका भी हाफ लेना होगा हमें। तो इंसीजर्स कितने पड़े हैं? 2 इंसीजर्स पड़े हैं, आगे आगे 2 कैनाइन, 1 पड़ा ये पॉइंटेड वाला, 1 प्री मोलार्स 2 पड़े हैं, 2 और मोलर्स कितने पड़े हैं? फिर से 3, तो 3। द डेंटल फॉर्मूला, द ह्यूमन टीथ, इंसीजर्स, द फ्रंट टीथ, टीथ इन द फ्रंट थोड़े से ब्रॉड होते हैं देखो, और ऊपर इनके रूट सी होती है, एक रूट होती है विच इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन, जबड़े की जो बोन है, जॉ की बोन है, उसमें ये धसा होता है हमारा दांत, थीकोडोंट अरेंजमेंट, डेंटिशन। और कैनाइन्स, उसके बाद पॉइंटेड दांत जो कि प्रीडेटर्स में, लायन टाइगर में बहुत शार्प होते हैं, meant for tearing the flesh, food, the meat. कटिंग टीथ कौन से हैं? इंसीजर्स, इनका काम होता है फूड को कट करना। प्रीमोलार्स आ गए कैनाइन्स के बाद, ये उनकी शक्ल बनाई है, ये ऐसे चौड़े से, और ऊपर उनकी रूट आ गई, एंड दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग द फूड, उसको ग्राइंड कर देते हैं। मोलार्स again meant for grinding the food. This is their diagram. The outer hard chewing surface of the teeth is made up of enamel, a very hard substance. This helps in the mastication, the thorough breakdown of food into smaller particles. The human tongue, हमारी जीभ, जिह्वा, ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर मिलती है, फ्रीली मूवेबल होती है, एक साइड से अटैच्ड, एक साइड से फ्री, मस्कुलर ऑर्गन है ये बकल कैविटी के फ्लोर
यानी फर्श, बेड से अटैच्ड होती है with the help of frenulum. A small piece called frenulum helps in attaching of the tongue with the floor, the bed of the buccal cavity. Frenulum. तो अगर हमारी ये जीभ है और ये अटैच्ड है, ये रही हमारी फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, ओरल कैविटी, तो यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, ये हमारी जीभ है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा कि जब हम जीभ को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे ये किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती है, एक फ्लैप सा होता है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम। अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस, उभार होते हैं टंग के ऊपर छोटे छोटे, हाथ लगा के देखो आपको पता है, और इनको बोलते हैं पैपिली। इन उभारों को पैपिली बोला जाता है और इनके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। Some of the papillae bear taste buds on them, जिनका काम होता है टेस्ट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। The human digestive system comprising of the alimentary canal and the digestive glands, starting with the mouth, मुख, और मुख गुहा आ गई बाद में, यानी कि ओरल कैविटी, बकल कैविटी, यहाँ पे नेक के एरिया में pharynx, the common passage for food as well as air. So here we can show in the front the windpipe, the trachea, जो बाद में अलग हो जाता है। कॉमन पैसेज तो है फेरिंग्स, लेकिन उसके बाद ये दोनों अलग हो जाती हैं, पाइपें बन जाती हैं दो अलग अलग, ये विंड पाइप और ये फूड पाइप। हमारी फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, भोजन नली। ये क्या आ गया? बैग लाइक स्ट्रक्चर, द स्टमक। ये क्या पड़ा है? एक ग्लैंड, लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड आवर बॉडी। ये राउंडेड गॉल ब्लैडर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, येलो इन कलर, पैनक्रियाज। स्टमक के बाद शुरू हो गई ये सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, पतली सी नैरो टेढ़ी मेढ़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, look here, is opening into the large intestine. The last part, that is the anus. उससे पहले रेक्टम, जहाँ पे टेम्परेरी अनडाइजेस्टेड फूड को रखा जाता है, रेक्टम। लास्ट पार्ट इज द एनस, स्टार्टिंग पार्ट इज द माउथ, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट। स्मॉल इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट्स हैं, भाग हैं। द ड्यूडेनम, जस्ट आफ्टर द स्टमक, यू शेप्ड ट्यूब, ये यू शेप बना रही है ना, देखो घूम रही है ऐसे, तो ये है ड्यूडेनम। और उसके बाद शुरू है जेजुनम, द जेजुनम, एंड द इलियम, the last part of the small intestine. Whereas the large intestine again is divided into various parts. ये खुद देखो ऊपर को जाने लग रही है, लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर को चढ़ रही है। इस वाली को बोलते हैं इसलिए असेंडिंग कोलॉन, ये क्योंकि ऐसे सीधी सीधी सी पड़ी है तो इसलिए इसको बोलते थे ट्रांसवर्स कोलॉन, बिछी हुई सी ट्रांसवर्स कोलॉन। और ये नीचे आती हुई कोलॉन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोचो, अगर ये असेंडिंग है तो ये क्या है? नीचे जाती हुई वाली, सोचो क्या होगा?
descending colon is the name of this large intestine part. The three types of salivary glands: the parotid gland, a kind of salivary gland. These are found in pairs. ये क्या पढ़े हैं यहाँ पे? Submaxillary, another type of salivary glands, and the sublingual salivary glands producing saliva in us. ये पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आपने सब पढ़ा हुआ है ये लोअर क्लासेस में. हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई कार्य नहीं है यहाँ पे. वेस्टिजियल ऑर्गन है लेकिन ये उत्पन्न होता है, कोई कार्य नहीं होता इसका. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. आप खाना खा रहे थे और खाते खाते खूब बतिया रहे थे, खूब बोल रहे थे. आपकी मॉम ने आपको टोका, लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी और क्या बोलते हैं आप इसको, धसका लग गया, जिसमें आपको खाना आपका घुस गया. विंड पाइप में जाना था यहाँ, लेकिन घुस गया विंड पाइप में थोड़ा सा खाना और आपको बहुत प्रॉब्लम आई. आपने खांसना शुरू कर दिया, यकायक. ये क्या हुआ? ये है आपकी विंड पाइप, ट्रैकिया, और ये है फूड पाइप, ईसोफेगस. दो नलियां आपकी नेक के अंदर शुरू हो चुकी हैं. ट्रैकिया के ऊपर एक बकायदा लिड है. ये देख रहे हो, लिड, ढक्कन इसका. इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ढक्कन को. और ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया. इसको ये एपिग्लॉटिस कवर करता है. जब भी हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, अंदर ले जा रहे होते हैं खाने को खाते समय, तब ये एपिग्लॉटिस बंद रहता है. बंद हो जाता है ढक्कन, नीचे आ जाता है, देखो बंद हो जाता है. ताकि क्यों? ताकि खाना अंदर ना घुसे, ये बंद रहे, महफूज. खाना विंड पाइप में नहीं घुसना चाहिए. लेकिन अगर आप साथ में बोलोगे भी, यू स्पीक अलॉन्ग विद ईटिंग, देन एपिग्लॉटिस विल हैव टू ओपन. क्योंकि ये विंड का आना जाना ही तो है आपका बोलना. तो विंड को जाना है तो एपिग्लॉटिस खुला होना चाहिए. ये ढक्कन हटेगा और साथ में खाना तो घुसेगा फिर. यही हुआ है. एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि से बना हुआ है ये फ्लैप, ये ढक्कन, एपिग्लॉटिस. दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, that is the opening of windpipe. The esophagus, the food pipe, a thin, long tube which extends posteriorly through the neck. neck से चलती हुई esophagus चलती है in the thorax region up to the diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure, muscular structure called the stomach. So this narrow pipe is the food pipe. The esophagus leads to the stomach. J-shaped muscular bag-like structure, the stomach. A muscular sphincter valve regulates the opening of the esophagus into the stomach. At this junction, at this boundary, you find a valve, a sphincter, and this is called cardiac sphincter, and it may also be called gastroesophageal sphincter. ये स्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये रेस्पिरेशन वाली एयर को अंदर नहीं घुसने देता. हमारा स्टमक हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में मिलता है, एब्डोमिनल कैविटी के
तो आपको यहाँ पे कहीं पे आपका स्टमक लेफ्ट साइड में मिलेगा, आपकी लेफ्ट साइड में. सो दिस इज द स्टमक, बैग लाइक स्ट्रक्चर found on the left side of the abdominal cavity. Our stomach has three parts, namely the cardiac part, into which this esophagus opens. इस एरिया में जहाँ esophagus खुलती है ये है cardiac part of the stomach. The fundus या fundic region of the stomach, another region of the stomach, another part, and the pyloric area, the pyloric region, which opens into the first part of the small intestine. ये small intestine में खुल रहा है pyloric भाग stomach का. ये क्या आ गई? small intestine शुरू हो गई है, जिसके शुरुआती एरिया को बोलते हैं ड्यूडनम. और यहाँ क्या पड़ा है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है स्टमक और ड्यूडनम के बीच में. Again, the opening of the stomach into the duodenum is guarded by a valve, a sphincter, muscular in nature. The opening of the stomach into the small intestine, that is the duodenum area, is regulated by a valve, this opening, and it is of course named as, क्या नाम होगा यहाँ पे? अगर वो कार्डियक स्फिंक्टर था तो यहाँ क्या होगा? Yes, pyloric sphincter is the name based on the region where it is found. Stomach के बाद ये सारी small intestine है, and it is divided into three parts. The beginning one is called duodenum. It is U-shaped. A long coiled middle part, that is jejunum, again small intestine part, and a highly coiled last part, the ileum. The small intestine, that is the ileum, the last part, is opening into what? Yes, the large intestine. Small intestine जुड़ती है large intestine के साथ finally जाके. यहाँ पे देखो, ये सारी स्किन कलर की जो मैंने दिखाई है घूम के आती हुई, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. और इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. सीकम, कोलोन, rectum. Cecum is a blind sac-like structure which you find here. Blind sac-like structure in the very beginning of the large intestine, and it has a tube-like structure also which is called vermiform appendix. Cecum का काम है कुछ बैक्टीरिया को हार्बर करना, कुछ microbes which are beneficial, that is symbiotic in nature. Such microbes will be found in the cecum, the blind sac-like structure, all this area, cecum. Cecum in humans is poorly developed, whereas in the herbivores, in the rabbits, in the cows, it is well developed and helps in breakdown of the cellulose. The vermiform appendix. It has no function at all. It is known to be a vestigial organ having no function as such. The second part of large intestine, colon, divided into three parts again. ये ऊपर को जा रही है colon, तो इसको क्या बोलेंगे? ascending colon. ये टेढ़ी हो गई है, ऐसे इस तरह से बिछी हुई सी है, तो transverse colon. और ये नीचे को जा रही है colon, तो descending colon. Then comes in the end the rectum, an area which will be temporarily holding the undigested food till it is finally thrown out, egested out through the anus. This process is called egestion, throwing out of the food through the anus.
the undigested waste material. हमारी alimentary canal, a tube, open tube, starting from the mouth up to the anus, isn't it? So here the esophagus begins somewhere. Esophagus से लेके रेक्टम तक कितनी लेयर्स होती हैं इसकी वॉल में, इस ट्यूब की वॉल में लेयर्स कितनी हैं, कितनी लेयर्स की बनी है? 4 लेयर्स की होती है ये एलिमेंट्री कैनाल. एंड द नेम्स ऑफ दीज लेयर्स आर आउटर मोस्ट सेरोसा. सेरोसा से अंदर को देखो है मस्कुलरिस, ये जो मैंने ऑरेंज में बनाई है. फिर है सबम्यूकोसा, ये येलो येलो जो बनाई है. एंड द इनर मोस्ट, दैट इज म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सबसे बाहरी परत सेरोसा, बहुत पतली सी, थिन एपिथेलियम की बनी हुई, बहुत पतली सी, और इसी को बोलते हैं मीजोथीलियम. इस वाली एपिथेलियम को जो विसरल ऑर्गन्स की है मीजोथीलियम कहते हैं. देन कम्स द मस्कुलरिस. इट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स की बनी हुई है ये, इनवॉलंटरी मसल्स. याद आया? स्मूथ मसल्स ऐसे बनाते थे हम. दीज आर द स्मूथ मसल फाइबर्स. ये भी 2 तरह के मिलते हैं. अंदर वाली जो है अंदरूनी सर्कुलर मसल्स होती है. मस्कुलरिस की 2 लेयर्स दिख रही हैं आपको, देखो. सर्कुलर मसल्स तो हैं ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाला भाग बनाया मैंने, ये सर्कुलर, देखो पूरा सर्कल बना रही है, ऐसे ऐसे चल रही है. और ये है उसके बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का एरिया, ये नीला नीला. तो ऑल दीज ऑरेंज and the blue area is the muscularis. 2 parts, inner circular muscles, outer longitudinal. There may also be some oblique muscle layer in some cases. Oblique muscles भी हो सकती है साथ में. The third layer of alimentary canal, that is the submucosa, found to the inside of muscularis. सबम्यूकोसा ये वाली है, ये जो येलो येलो में दिखाई है. ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें पाए जाते हैं नर्व्स, ब्लड, lymph vessels. All these are found lying in the submucosa layer. Duodenum, ये वाला एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का बिगनिंग पार्ट, इसमें सबम्यूकोसा बनाती है कुछ ग्लैंड्स, ये देखा गया है. लास्ट लेयर, दैट इज द 4th लेयर, इनर मोस्ट, इज द म्यूकोसा परत. स्टमक में ये म्यूकोसा ग्लैंड्स बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसी तरह स्टमक की बनाती है म्यूकोसा रूगी इनफोल्डिंग्स. अंदर को स्टमक में फोल्ड्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं और इन फोल्ड्स को बोलते हैं रूगी. दिस ऑल इज म्यूकोसा. ये सारी म्यूकोसा की मॉडिफिकेशंस हैं. इनर मोस्ट लाइनिंग. म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स विलाई, finger like structures, finger like projections of the inner wall of the small intestine.